صحافی حضرات سے، کیمرہ مین رپورٹر سے معذرت خواہ بھی ہوں۔ میں درخواست کروں گا جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی امیر اور پی ڈی ایم کے صدر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی خدمت میں کہ وہ میڈیا کے حضرات سے خطاب فرمائیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آج پشاور میں ہونے والے انتہائی افسوسناک اور الفاظ میں جہاں میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں مسلانہ اقدام بڑا شرمناک قسم کا اقدام ہے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک طرف دعوے ہیں کہ ہم نے دہشت گرد کی ہے، دہشت گردی ختم ہو چکی ہے اور ہم نے لوگوں کو امن دیا ہے، اور دوسری طرف پشاور جیسے شہر کے اندر ایک دینی مدرسے میں چھوٹے بچوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے، بم دھماکہ ہوتا ہے، وہاں طلباء شہید ہوتے ہیں، زخمی ہیں، پورا علاقہ خون ہے۔ اس حوالے سے ہم تمام شہداء اور ان کے ورثاء، تمام جو لوگ زخمی ہوئے ہیں اور اسپتالوں میں ہیں، ان کے ساتھ، ان کے خاندانوں کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اور جو شہید ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ و ارفع درجات نصیب فرمائے، اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ ساتھ ہی میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حکومت اور حکومتی ادارے اگر ہمیں تحفظ فراہم نہیں کر سکتی تو میں تمام دینی مدارس سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے مدرسے اور اپنے مدرسے کے اندر پڑھنے اور پڑھانے والوں کی سیکورٹی کا انتظام خود کریں۔ اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ریاست ہماری حفاظت کرے گا یا حکومت اس حوالے سے کوئی ذمہ داری پوری کرے گی، بلکہ ان کو براہ راست وہاں پر اپنے سیکورٹی کا خود انتظام کر دینا چاہیے۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، فرانس میں اور پھر وہاں کی صدر پریزیڈنٹ آف فرانس اس کی باقاعدہ ہدایات پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتون کو باقاعدہ سرکاری عمارات پر آویزان کیا جاتا ہے، اور اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اظہار رائے کی آزادی ہے، جس چیز سے دنیا میں مسلمانوں کی دل آزاری ہو یا کسی بھی انسان کی دل آزاری ہو، کوئی بھی اس کو اظہار رائے کے سے تعبیر نہیں کرتا، اس کو جرم کہا جاتا ہے، اور اس پر یورپ کی عدالتوں کے فیصلے بھی آ چکے ہیں، اس پر وہاں کی یورپی پارلیمنٹ کی آرا بھی آ چکی ہیں اس حوالے سے۔ پھر اس کے باوجود یورپین پارلیمنٹ کا ایک رکن ملک وہ اس قسم کی حرکت کرتا ہے، اور میں فرانس کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی، ملا محمد عمر وہاں کے امیر تھے، اس زمانے میں بامیان کے اندر بدھا کے بت کو توڑنے کے لیے انہوں نے کوشش کی تھی اور گولے برسائے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ
اگلے روز یا اس سے اگلے روز فرانس کے سفیر سے میری ملاقات طے تھی اور انہوں نے میری ملاقات احتجاجاً منسوخ کر دی، کیونکہ آپ ان کی حمایت کرتے ہیں اور وہ ہمارے جذبات کو مجروح کر رہا ہے، تو انہوں نے میری ملاقات منسوخ کر دی۔ اگر بامیان کے خدا کے بتوں کے اوپر تمہاری دل آزاری ہوتی ہے اور تم اس حوالے سے اپنا رد عمل دیتے ہو فوری طور پر، پھر آپ کو اس بات کا احساس کیوں نہیں ہے کہ دنیا کی 1/4 سے زیادہ آبادی جو امت مسلمہ کی ہے، امت مسلمہ کے جذبات کا آپ کا احترام کیوں نہیں؟ اور پھر یاد رکھیے، اگر ایک فرد کوئی جرم کرتا ہے تو اس فرد کے جرم کو تو ریاست کنٹرول کرتی ہے، لیکن اگر حکمران خود ایک ایسا اقدام کرتا ہے، یہ تو خود مسلمانوں کے خلاف جیسے اعلان جنگ کر رہا ہے، دنیا کو کیا میسج دینا چاہتا ہے؟ اس صورتحال میں پوری امت مسلمہ کی دل آزاری ہوئی ہے، اور اس لیے میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے لوگ وہ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اور تاجر طبقہ ہے، کاروباری طبقہ ہے جو وہاں سے مال لاتا ہے، وہ ان کے ساتھ تجارت معاہدے منسوخ کریں، چاہے حکومت کی سطح پر ہو، چاہے ہمارے کاروباری طبقے کی سطح پر ہو۔ ہم ان سے اپیل کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب جو مال ہمارے مارکیٹوں میں پڑا ہوا ہے اس کے تو پیسے ادا ہو چکے، لیکن علامتی طور پر لوگ اسے کہنا چاہتے ہیں کہ اپنا تھوڑا سا نقصان اٹھا کے کہ وہ ان کی مصنوعات کو خریدنے کا بائیکاٹ کریں، اور ریاست کی سطح پر ہو، حکومت کی سطح پر ہو، یا وہ ہمارے تاجر طبقے کے اور کاروباری طبقے کی سطح پر ہو، تمام ان معاہدات ان کے ساتھ یا تو پائپ لائن میں ہیں ان کو بھی منسوخ کر دیں، اور آئندہ کے لیے بھی ایسے ممالک کے ساتھ ہم تجارتی روابط ختم کر دیں، تاکہ ہم ثابت کر سکیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی نبی وطن ہم اس کی توہین کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، نہ اس کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ عجیب یورپ ہے کہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار سمجھتے ہیں، لیکن جب ان کی توہین ہوتی ہے تو اس کی عزت و ناموس کے لیے بھی وہاں کا مسلمان کے منہ ڈبار آتی ہے میدان۔ یہ لوگ جو مذہب کے حوالے سے بے حس ہو چکے ہیں اور اپنی بے حسی کو برداشت کا نام دیتے ہیں، اور جب مسلمان اس پر احتجاج کرتا ہے تو اس کو عدم برداشت سے وہ تعبیر کرتے ہیں۔ یہ سوچ ہمیں قبول نہیں، یہ فلسفہ ہمیں قبول نہیں ہے، یہ عقل ہمیں قبول نہیں ہے، اور ہم نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ لہذا اس حد تک کہ ہم ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اور ہم آئندہ کے لیے ان کے ساتھ جو کاروباری رابطہ ہے وہ توڑ دیں، اور اس کے لیے میں پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں، پاکستانی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ آنے والے جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک پورا ہفتہ احتجاج ہم منائیں، تاکہ ملک کے ہر حصے میں لوگ مظاہرے کریں، احتجاج کریں، روزانہ کسی نہ کسی صورت میں پبلک جو ہے وہ روڈوں پر آئے اور کٹڑے اٹھائیں اور اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرائیں۔ پورا ایک ہفتہ مکمل ہم ہفتہ احتجاج کے طور پر منانے کا اعلان کرتے ہیں۔ مولانا صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کی جانب سے جو احتجاج کا آغاز کیا گیا، اس دوران وفاقی وزیر شیخ رشید مختلف قسم کی باتیں کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ جھاڑو پھرے گا، حالات خراب ہوں گے، اب پشاور میں بم دھماکہ بھی ہو گیا ہے، تو آپ کیا اس کو کوئی سازش سمجھتے ہیں؟ کیا صورت حالات کے ساتھ جو لوگ اس قسم کی پیشن گوئیاں کرتے ہیں پہلے دستخط کی نظر کی طرف جائیں کہ کہاں سے ان کی پیشن گوئی کیوں کی، اور پھر وہ حکومت کا وزیر ہو، اور یہ ذمہ داری حکومت کی ہو کہ ان کی انٹیلیجنس جو ہے اس کو وہ اتنی بیدار ہو تو وہ ایسی صورتحال پہ قابو رکھ سکے۔ تو یہ ساری صورتحال وہ اپنی کمزوری کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کمزوری کہہ کر یہ ذمہ داری کا قبول کرنے کی بات ہے۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے گزشتہ روز فرمایا کہ جو ادارے ہیں احتجاجی جلسے میں بھی آپ نے کہا کہ جو ادارے ہیں اگر وہ کچھ غلط کریں گے تو احتجاج ہمارا آپ کا یہ بات بالکل درست ہے کہ پاکستان کی آپ بہت بڑی مذہبی جماعت ہیں، سیاسی جماعت ہے، آپ کا یہ احتجاج درست ہے،
लेकिन जो नवाज शरीफ का बयानिया है कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लेकर या ISI चीफ का नाम लेकर बराह रास्त उन्हें मुखातिब करके वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप नहीं समझते हैं कि आपकी जमात के लिए ये बयानिया जो है कोई दुरुस्त नहीं? मेरे एक पास अब मैं आपसे भी जवाब चाहूँगा, हम इस हुकूमत को सेलेक्टेड हुकूमत है, तो सेलेक्टेड के लिए कोई सेलेक्टर तो होना चाहिए ना। अगर ये दोनों नहीं है तो वो हमें बता दे कौन सेलेक्टर है, ताकि हम उनको क्यों नाम दें, हमारे मोहतरम है, हमारे निज़ारों के बड़े ऐसे नौबत क्यों आ जाती है। हम नवाज कबूल करेंगे कि आप ऐसी बात न करें, क्योंकि हम इदारों को एहतराम देना चाहते हैं, तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। लेकिन अगर हमें शिकायत है और शिकायत पैदा हुई है और हमने वो शिकायत छुपाई भी नहीं, तो फिर या तो कौन से माजरत करें या फिर हमें वो जिम्मेदार बता दें कि जिसने नामी की है और एक ध्यानज़दा इंतखाब करने के लिए लोगों को। अच्छा मौलाना, इस मीडिया पे जलसे में वो बहुत ज़्यादा कामयाब जलसे करार दिए जा रहे हैं और इससे काफ़ी उछल पछल है हुकूमती ऐवानों में। आप ये बताइए कि आइंदा का लाहे मतलब क्या बनने जा रहा है, कुछ जलसे और जो होना है, आप समझते हैं कि इन जलसों से हुकूमत का कुछ बिगड़ सकेगा? अगर आप समझते हैं किसी ने बैठाया है? देखिए बात यह है कि अवामी बेदारी, जब आम आदमी बेचारा जो बेबस है, घर पे बैठा हुआ है, धूप के हाथों में डाल रहा है, बच्चे उनसे देखे नहीं जाते, सुबह शाम के खाने के लिए फिक्रमंद है, महंगाई आ गई है, माश के लिहाज से आपके सालाना तरक्की का जो तखमीना है वो जीरो से नीचे चला गया है। ऐसी सूरत हाल में क्या अवाम की तर्जुमानी हमें नहीं करनी? क्या अवाम के जज्बात की नुमाइंदगी हमें नहीं करनी? हम अवाम की तर्जुमानी करना चाहते हैं, अवाम की मुकम्मल तायीद हमारे साथ है इस वक्त। और कौन ये तवक्को रख सकता था? पिछले साल हमारे मीडिया मार्क आपके सेक्टर पर कुछ नजर देखा, ये वो पब्लिक आई है कि जो समझते हैं कि हम गलत हुक्मरानी हो रही है, ना अहलों की और नालायकों की हुक्मरानी। आज तमाम पार्टियां मुश्तरका इवेंट के साथ मुश्तरका जलसे कर रही है, उसमें जो पब्लिक की शिरकत है, चाहे गुजरावाला की शिरकत हो, चाहे कराची की हो, चाहे कोयटा की हो, इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पब्लिक की शिरकत जो है वो क्या कह रही है। लेकिन एक बात मैं आपकी करूँगा, आज 27 अक्टूबर, पिछले साल में हमने 27 अक्टूबर को कराची से आज़ादी मार्च शुरू किया था और इसलिए किया था कि 27 मार्च ये कश्मीर 27 अक्टूबर ये कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार है। कश्मीरी चाहे सरहद पार हों या हमारी तरफ हों या गिलगित बल्तिस्तान के लोग हों, ये 27 अक्टूबर वही है जहाँ 1947 में इंडियन फौजें दाखिल हुई और कश्मीर के हिस्से से कब्जा किया। आज हम उनके साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से भरपूर तौर पर अपनी यकजहती का इजहार करते हैं। हम पहले भी उनके साथ शाना बशाना खड़े रहे और आज भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान कौम उनके शाना बशाना खड़ी है। ये और बात है कि हमारे हुक्मरानों ने कश्मीर का सौदा करके और कश्मीरियों के खून का सौदा करके, वहाँ की माओं और बहनों की अस्पतों का सौदा करके कोशिश की है, जिसको पाकिस्तान ने कौन कबूल करने को तैयार नहीं। ये बताएं कि तशद्दुद तो जारी रहती है, आज दहशतगर्दी का भी वाकया हुआ है, तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमत और PDM की जो क़यादत है उनके दरमियान डायलॉग की ज़रूरत है, और क्या कोई ऐसा इदारा है जो सालिसी का इसका दरमियान? इसी से मुंसलिक सवाल है कि मुल्क के अंदर तो तब्दीली नहीं आई, हुकूमत वफाकी हुकूमत जो है उनमें कोई नरमी आ गई है। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ ये कहा है कि नवाज लीग के साथ कोई बात नहीं होगी, दीगर जो जमातें उनके लिए बात करने के लिए दरवाजे खुले हुए, लेकिन करप्शन पर बात नहीं। हम तारीख के हिसाब से बात नहीं हो बाकी उनके ध्यान में बात हो सकती, लेकिन नाजायज़ हुकूमत में कोई भी फायदा नहीं। अच्छा मौलाना साहब, ये बताएं कि जिस तरह जो आपके जलसे हो रहे हैं, PDM के जलसे हो रहे हैं, उसी तरह नेब भी एक्टिव हो गई है। मुख्तलिफ जो है वो जो रहनुमा है उनको सुनवाई पे बुलाया जा रहा है, उनके रेफरेंस तैयार किए जा रहे हैं। तो इस हवाले से क्या समझते हैं कि नेब का जो किरदार है इस वक्त मुल्क में, तो पॉजिटिव है या मतलब सिर्फ अपोजिशन को? नेब एक इंतखाबी इदारा है जो सरकार के लिए इस्तेमाल हो रहा है, अपोजिशन
खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है और हुकूमत के हर करप्शन पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है और सदर इख्तलाफ की पुरानी कोई भूली बिसरी कहानियाँ उनको याद आ रही हैं। अगर बहुत पीछे जाना है तो ये कबूल ने फैसला नहीं करना, तो ये कौम ने फैसला करना है कि कब से है। वैसे मौलाना साहब तो गुजरांवाला के जलसे की बात नहीं करता, लेकिन कोयटा में जलसा था या जो कराची में जलसा था आपकी वजह से 100% कामयाब हुआ, आपकी जमात की वजह से। आप इसे कहते हैं कि जो पार्टी इस वक्त शुरू में है वो सही जा रही है कमेटियों के साथ? हम सबकी सलाहियत है इसके अंदर और हम कोई ऐसा पैमाना देने को तैयार नहीं है कि जिसमें हम 2-4 अफराद को ऊपर नीचे कम्युनिकेशन की बात करें। सबकी उसमें हमकी सलाहियत है और आवाम की मर्जी है वो इसका एजेंडा लेकर उसमें शरीक होते हैं। अच्छा मौलाना साहब, सदारती आर्डिनेंस जारी किया गया है जिनके जजायर के हवाले से, उस पर JUI का मौक़िफ़ क्या है? JUI का तो मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़ेह तौर पर सामने आया है। मैंने गुजरांवाला के जलसे में भी ये बात की है, मैंने कराची के जलसे में भी ये बात की है, मैंने बलूचिस्तान कोयटा के जलसे में ये बात की है कि 18वीं तरमीम के खिलाफ और जज़ायर के ऊपर बाकायदा उन सूबों का हक़ है, उन सूबों के अवाम का हक़ है, वहाँ के अवाम के बच्चों का हक़ है और किसी तरीके से भी विफाक को यह हासिल नहीं है कि वो उन जज़ायर पर कब्ज़ा करें जहाँ वहाँ के इलाके के वकीलों को रोज़गार का ज़रिया है, मछुआरों का रोज़गार का ज़रिया है। तो इसके पूरे मफादात जो हैं ये वहाँ के सूबों के अवाम और उनके बच्चों के। मौलाना साहब आप बहुत बड़े जलसे कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं कि जब ये जलसे ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद अगर हुकूमत कुछ नहीं हो तो उसके आगे का इलाया क्या होगा? जलसे बिल्कुल खत्म नहीं होंगे, मुजाहरे भी होंगे, जलसे भी होंगे और उस वक्त तक होंगे जब तक कि हम कौम को उसके वोट की अमानत होंगे। वफाकी हुकूमत में अदब बर्दाश्त बढ़ती जा रही है, अब मीडिया के गले को दबाया जा रहा है। पहले सहाफ़ी बेरोज़गार हुए, अब चैनल 24 को बंद कर दिया गया, उसके लाइसेंस को मुकम्मल तौर पर कैंसिल कर दिया गया है। कैमरा गर्दी जो है वो अब इस वक्त जारी है, क्या कहेंगे? हम तो इस हवाले से बिल्कुल मीडिया के साथ खड़े हैं और हमें मालूम है जिस तरह शकील रहमान को जेल में है, बहुत से लोगों को चैनलों से फारिग कर दिया गया, सीनियर एंकर्स को फारिग कर दिया है और अब बाकायदा कैमरा को फ़ोन करती है, फ़ोन कोई ऐसा बाकायदा आर्डर भी नहीं, आपने ये खबर नहीं चलानी, आपने फलां को खबर नहीं देनी, आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, लेकिन इस जमहूरी मुल्क में एक कंट्रोल्ड मीडिया है, न यहाँ की जमहूरियत आज़ाद है न यहाँ की मीडिया आज़ाद है। हमेशा दोनों फ़रोग़ पाते हैं, एक तो खुले जमहूरी माहौल में जहाँ दुनिया में जमहूरियत नहीं है, डिक्टेटरशिप है या बादशाह, वहाँ सहाबत भी नहीं है। जहाँ पर जमहूरियत है और एक खुला माहौल वहाँ ये भी फ़रोग़ पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि दोनों चीज़ें जो हैं आइन के मुताबिक होनी चाहिए, आइन हमें हक़ देता है इज़हार राय करें और हम खुद उसके हदूद भी डालते हैं। ये नहीं कि चैनल जो है वो कोई बेशूर किस्म के लोग वहाँ वो बैठे होते हैं और उन पर पाबंदी क्यों लगाई जाती है, उनको क्यों फ़ोन किए जाते हैं कि आप किस तरह से बात करते हैं। आपने आज इसके खिलाफ ये केस उठाना है, आपने आज इन चीज़ों को हाईलाइट करना है, इन चीज़ों को आपने दबाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अल्लाह मुझे ऐसे मकदार और ऐसे धोखेबाज दोस्त से पनाह दे दे कि जो मेरी अच्छाई को देखे तो छुपाए और अगर मेरी कोई बुराई देखे तो उसे उछाले। मौलाना साहब आपने हमेशा मीडिया की आज़ादी की ही बात की है, लेकिन सखर में जो आपके रहनुमा है मौलाना उबैदुल्लाह भुट्टो और पनवाकिल में है महमूद चाचड़, उन्होंने सहाफ़ियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाए हैं और बहुत सारे मुतासर हुए। हमने मौलाना राशिद साहब को भी ये दरख्वास्त भी की थी, लेकिन अभी तक नोटिस नहीं लिया गया, तो उस पर आप क्या कहते हैं? बिल्कुल झूठे मुकदमा आते हैं साहब के ऊपर, न मुझ तक आपकी कोई दरखास्त पहुंची। मौलाना साहब आज आपसे बात हुई थी, आज आप सुन लो, आपने शिकायत तो हमें भी है, मैंने कितने मैं आज आप हुए लेकिन JUI मीडिया के खिलाफ इस्तेमाल हो, JUI के नाम हो, वो मीडिया मेरे खिलाफ इस्तेमाल होगी और नाजायज इस्तेमाल होगी तो जब मैं भी पाकिस्तानी और आप भी पाकिस्तानी हैं, फिर मुझे हक होता है कि मैं कानूनी कार्रवाई अपने खिलाफ करूँ। क्यों आप मेरे खिलाफ झूठ खबरदार करते हैं? क्यों आप मेरी किताबकशी करते हैं? किसकी हिदायत में कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आप? ये मुझे हक है, मैंने आपको कानून के मुताबिक नोटिस दिया है किसी 4 चैनलों को कि आप या ये इल्ज़ाम साबित करें
या फिर आप जो है खत की जरूरत है। हुकूमत नया साल देखेगी मौलाना साहब, आप ये हुकूमत बताइए, नया साल आप देखेगी कैसे कहते हैं कि पीटीआई की हुकूमत इमरान खान ने ट्वीट किया है कि नवाज शरीफ पे जब भी बुरा वक्त आता है या तो बॉर्डर पे कशीदगी शुरू हो जाती है या इस तरह की दहशतगर्दी हो जाती है, तो क्या समझते हैं वैसे वज़ीर आज़म उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर अगर जब भी बात करते हैं कोई बोंगी मार जो भी बात है वो करने की उनकी जिम्मेदारी है। जहाँ वो बैठा हुआ है या तो वो कह दे कि नवाज शरीफ का और हम सब का मौक़िफ़ सही है कि तुम जाली हो पुराने स्कूल के लोगों की बात में अगर वो संजीदा है तो उसकी जिम्मेदारी है। तो फिर पाकिस्तान में वो इस किस्म की बात करता है तो हमारा तो पहले ख्याल है कि ये बाहर का एजेंट है। हम तो पहले भी कहते रहे कि ये बाहर के इदारों का एजेंट है और एजेंट को पाकिस्तान को मुसल्लत किया गया है ताकि सीपैक का तबाह बर्बाद कर दे और पाकिस्तान की माशी तरक्की को रोक दे और पाकिस्तान के वजूद के लिए रिस्क बन जाए। इसके लिए इसको मुसल्लत किया गया है। अब कब तक कौन उसको बर्दाश्त करे, क्यों बर्दाश्त करे? मौलाना साहब, इब्तिदा में इमरान खान साहब जब भी तहरीक में शुरुआत में थे डॉक्टर आफिया की बात करते थे, लेकिन हुकूमत में आने के बाद अब उनकी कोई बात नहीं हो रही। देखिए अब यही तो बात है ना कि फिर यार बड़ी बड़ी बातें ना करो या फिर हिम्मत करो, उसके मुताबिक आप कौम को करके दिखाएं। तो क्या उसके पीछे वजूहात है कौम के सामने रहेगा, मजबूरी क्या है? अच्छा मौलाना साहब, आप ये बताइए कि जिस तरह भी बंगलमाती फिल्म में आप खुद हुकूमत के खिलाफ पीटीएम के हवाले से क़यादत भी कर रहे हैं, तो आपने मदारस के हवाले से कहा कि अगर हुकूमत सिक्योरिटी फराम नहीं करती तो मदारस वाले खुद करें, लेकिन खुद आपसे जो है हुकूमत ने सिक्योरिटी वापस ले लिया आपने अपने लिए और अपनी जो क़यादत उस हवाले से सिक्योरिटी के हवाले से क्या क्या बात ज़्यादा नहीं क्या करता, दे देते हैं फिर दे देते हैं चलता रहता है। लेकिन मजबूरी तो ये दावे करना होता है पाकिस्तान में जैसे हो गई है ये उनके मुंह पे तमाशा है कि देख लो उन पे क्या होगा। नया साल हुकूमत करेगी सर? आपको क्या लगता है कि नया साल में ये